بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل جنت کا سفر کو سبسکرائب کریں۔ بدلتے آسمان کے نیچے اونچے پہاڑوں اور بہتی ہوئی ندیوں کے درمیان ایک شہر تھا، بابل۔ اس شہر میں زندگی اپنے شباب پر تھی، بازاروں میں رونقیں تھیں، محل اونچے اور بتوں کے مندر آباد تھے، مگر ان سب کے درمیان کچھ تھا جو مرا ہوا تھا، اور وہ تھی ایمان کی سچائی۔ لوگوں کے دلوں میں اندھیرا تھا اور اس اندھیرے کا نام تھا شرک۔ انہوں نے اللہ کو بھول کر بتوں کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ کبھی سورج کو پوجتے، کبھی چاند کو سجدہ کرتے، کبھی اپنے ہی بنائے ہوئے پتھروں کے سامنے جھکتے۔ انسان نے اپنی فطرت کو کچل کر اپنے ہی جیسے بے جان پتھروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ انہی بت پرستوں کے درمیان ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، نام رکھا گیا ابراہیم۔ لیکن اس بچے کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ جب اور بچے کھلونوں سے کھیلتے، یہ بچہ آسمان کو دیکھتا تھا۔ جب لوگ اپنے بتوں کو سجاتے، یہ بچہ ان بتوں کو تعجب سے گھورتا، جیسے پوچھ رہا ہو، کیا تم واقعی کچھ کر سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ایک جانے مانے بت ساز تھے۔ ان کا کام بت بنانا، انہیں رنگنا، سجانا، پھر بیچ دینا۔ وہ اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جایا کرتے، اور جب کوئی بت گر جاتا تو غصے سے کہتے، دیکھو یہ بت گر گیا، اسے اٹھا دو، سجدے کے لائق بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام مسکراتے، دل میں کہتے، جو گر سکتا ہے کیا وہ کسی کو اٹھائے گا؟ بچپن سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فطرت الگ تھی۔ سوال ان کے دل و دماغ میں گونجتے رہتے۔ وہ تعجب کرتے کہ کیسے ایک پتھر کا بت جو خود ہل نہیں سکتا، لوگوں کی دعائیں سن سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اس چپی کو قبول نہیں کیا جو ان کی قوم نے سچ کے نام پر اوڑھ رکھی تھی۔ جب کوئی کہتا، ہمارے بت ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں، تو ان کے اندر ایک صدا گونجتی، اگر یہ بت تمہاری دعائیں سن سکتے ہیں تو اپنی زمین پر گرے کیوں پڑے ہیں؟ ایک روز کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ ایک بت کے سامنے کھڑے تھے۔ والد نے کہا، بیٹا ان کے سامنے سجدے میں جھک جاؤ، یہ ہمیں برکت دیتے ہیں۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ بولے، ابا جان، یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، یہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، ہمیں کیا بچائیں گے؟ یہ بات ان کے والد کو چبھ گئی، مگر ابراہیم علیہ السلام کی باتوں میں وہ سچائی تھی جو دل کو ہلا دیتی تھی۔ معاشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب ایک عجیب اور فتنہ خیز لڑکا سمجھا جانے لگا۔ لوگ کہتے، یہ لڑکا ہمارے خداؤں کا انکار کرتا ہے، یہ بغاوت پھیلا رہا ہے، مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ بغاوت نہیں، حق کی آواز ہے، وہ آواز جو صدیوں بعد بھی ہر باغی دل کو جگاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم صرف بت نہیں پوج رہی، بلکہ سورج، چاند اور ستاروں کو بھی معبود بنا چکی ہے۔ وہ ان سب کو نزدیک سے دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھیں پوچھتی، کیا ان کی کوئی طاقت ہے؟ یہیں سے شروع ہوئی ان کی تلاش، ایک سچے رب کی تلاش۔ اب اگلے دن رات کی خاموشی میں، جب پورا شہر نیند کی آغوش میں تھا، ایک دل بے چین تھا، ابراہیم علیہ السلام کا دل۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان سے الگ تھے۔ آنکھوں کے سامنے چمکتے بت، سجتے ہوئے مندر، بجتے ہوئے نگاڑے، مگر یہ سارا شور ابراہیم علیہ السلام کے دل کو سکون نہ دے سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے من ہی من میں سوچ رہے تھے، اگر یہ رب ہے تو انہیں میری طلب کیوں نہیں بجھاتی؟ ان کے سوالوں کا جواب کسی پتھر، لکڑی یا سونے کے بت میں نہیں تھا۔ ایک رات انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، وہاں ایک ستارہ چمک رہا تھا، روشن پر نور۔ دل نے کہا، شاید یہی میرا رب ہے جو اتنی روشنی بخش رہا ہے۔ مگر تھوڑی دیر بعد وہ ستارہ غائب ہو گیا، ڈوب گیا اندھیرے کی آغوش میں۔
इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता। अगर कोई माबूद हो सकता है तो वो हर वक्त मौजूद होना चाहिए। डूबने वाला रब कैसे हो सकता है? कुछ दिन के बाद चांद निकला, सफ़ेद, सर्द और पुरसुकून। वो सितारे से बड़ा था और अपने नूर में नर्म सा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा और कहा, अब ये मेरा रब होगा। मगर फिर वो भी गायब हो गया और इस बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल ज़्यादा बेचैन हुआ। वो बोले, अगर मेरा रब मुझे राह ना दिखाए तो मैं ज़रूर गुमराह हो जाऊंगा। यहाँ उन्होंने एक बड़ा कन्फेशन किया। हिदायत कोई पैदाइशी दौलत नहीं होती, ये तो रब की इनायत है। तब तक इंसान गुमराह ही रहता है जब तक ऊपर से रोशनी ना आए। फिर एक सुबह सूरज निकला, बड़ा ताजगी से भरपूर, रोशन, सारे जहान को रोशन कर देने वाला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा और कहा, ये तो सबसे बड़ा है, यही मेरा रब होगा। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो उनके दिल में हक की रोशनी मुकम्मल हो गई। अब जवाब मिल चुका था। उन्होंने ऐलान किया, शायद आसमानों से भी ऊंची आवाज में, मैं उस रब की तरफ रुजू करता हूँ जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया। मैं हरगिज़ मुशरिकों में से नहीं हूँ। ये वो लम्हा था जब तौहीद की रोशनी उनके दिल से निकलकर दुनिया के नक्शे पर फैलने लगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये तीनों कोशिशें, सितारा, चांद और सूरज को माबूद मानने की, दरअसल उनकी रूहानी ग्रोथ का हिस्सा थीं। उन्होंने खुद अपने अंदर सवाल उठाए, जवाब तलाशे और फिर अपने दिल से गुजार कर हर जवाब को आजमाया। उन्होंने आकिल, इंटेलेक्ट को इस्तेमाल किया, फितरत, नेचर को सुना और हिदायत की तलब को जिंदा रखा। वो किसी शख्स की बात पर नहीं, अपनी अंदरूनी आवाज़ पर चले और यही वजह है कि उनकी तौहीद सिर्फ लफ्ज़ी नहीं थी बल्कि तजुर्बे और मोहब्बत से भरी हुई थी। जो अल्फाज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहे थे, मैं डूबने वालों को रब नहीं मानता, वो आज भी हर उस इंसान के दिल में गूंजते हैं जो किसी झूठे माबूद से पीछा छुड़ाना चाहता है। उनका ये सफ़र हमें सिखाता है कि सवाल करना गुनाह नहीं होता, बशर्ते इरादा हक की तलाश का हो। हर चमकती चीज़ रब नहीं होती, क्योंकि रब कभी गायब नहीं होता। तौहीद दिल की आवाज़ है और ये आवाज़ हर इंसान में मौजूद है। अब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में तौहीद की शम्मा रोशन हो चुकी थी, वो अपनी कौम को हक की तरफ बुलाने का इरादा कर चुके थे। उन्होंने समझ लिया कि कोई बुत उनका रब नहीं, कोई सितारा, चांद या सूरज उनका मालिक नहीं, और वो रब जिसने सब कुछ पैदा किया वही इबादत के लायक है। मगर अब सवाल ये था, क्या ये सच दिल में रख लिया जाए या पूरी दुनिया को बताया जाए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फितरत बगावत करने वाली नहीं थी, लेकिन वो झूठ के सामने खामोश रहने वाले भी नहीं थे। और सबसे पहला इंसान जिसे उन्होंने दावत दी वो थे उनके अपने वालिद आज़र। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे अदब और मोहब्बत के साथ अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, क्यों आप ऐसी चीज़ की इबादत करते हैं जो न सुन सकती है, न देख सकती है और न ही आपको कोई फ़ायदा पहुंचा सकती है? वो बेटे का लहजा अदब से लबरेज था। उनकी आवाज़ में तलखी नहीं बल्कि मोहब्बत थी, मगर इस मोहब्बत के पीछे हक का शोला जल रहा था। उन्होंने कहा, अब्बा जान, मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया। मेरी बात मानिए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। कितना अजीब मंजर था। एक जवान लड़का अपने वालिद को समझा रहा था। बुतों के शोर में ये तौहीद की पुकार थी, और ये पुकार किसी मस्जिद के मिंबर से नहीं, एक बेटे के दिल से उठ रही थी। मगर आज़र को ये बात नागवार गुजरी। उनकी आंखों में गुस्सा भर आया। उन्होंने कहा, ऐ इब्राहीम, क्या तू मेरे खुदाओं से रुख फेरता है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संगसार कर दूंगा और तू मुझसे
ہمیشہ کے لیے الگ ہو جا۔ پیارے دوستو، سوچئے، یہ کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ ان کے اپنے والد تھے جس نے انہیں پالا تھا، سینے سے لگایا تھا، اور اب وہی باپ انہیں پتھر سے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ جب دل سے بات نکلے تو لہجہ تلخ نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ سلامتی میں رہیں، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا، وہ بہت ہی مہربان ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف والد ہی نہیں، پوری قوم سے مخاطب ہوئے۔ وہ بازاروں میں کھڑے ہوتے، لوگوں سے کہتے، کیا تم ایسے معبودوں کو پوجتے ہو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اللہ نے تمہیں اور تمہارے کاموں کو پیدا کیا؟ ایک بار انہوں نے بتوں کے سامنے جا کر انہیں دیکھا، ایک بت کے گلے میں ہار تھا، ایک کے ماتھے پر موتی، ایک کو دودھ چڑھایا جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہنسے نہیں، روئے، سہر گئے۔ انہوں نے بت سے سوال کیا، کیا تم کچھ سن سکتے ہو؟ کیا تمہیں فیصلے کا اختیار ہے؟ کیا تم کسی کو تکلیف یا راحت پہنچا سکتے ہو؟ بت خاموش تھے، اور ان کی یہ خاموشی سب سے بڑی گواہی تھی۔ جھوٹ بے آواز ہوتا ہے اور حق بولتا ہے۔ قوم ابراہیم علیہ السلام کی باتوں سے پریشان ہو گئی۔ ایک نوجوان جو نہ پیر تھا نہ سیاسی شخص، مگر اس کے لفظوں میں ایسا اثر تھا کہ لوگ بتوں پر شک کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، بتوں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم بتوں کو پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں، یا وہ تمہیں کوئی نفع اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کم عمر میں ہی ہدایت دے دی تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا، ابراہیم تو ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے، اگر ہم نے اسے نہ روکا تو ہمارے بچے بھی اسی کی طرح سوچیں گے۔ پیارے دوستو، حق کہنے والا اکثر اکیلا رہ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود اب ایک خطرہ بن چکا تھا۔ وہ مرد تنہا تھے، مگر سچ ان کے ساتھ تھا، اور یہ وہ مرحلہ تھا جہاں اب بات دعوت سے آگے عمل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم امتحان کی طرف بڑھ رہے تھے، ایک ایسا عمل جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف زبان سے توحید کا اعلان کیا، بلکہ اپنے عمل سے بت پرستی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ صبح کا سورج آہستہ آہستہ نکل رہا تھا، پرندے اڑان بھر رہے تھے، ہوا میں ایک خاموشی تھی، لیکن وہ خاموشی طوفان سے پہلے والی تھی۔ شہر میں رونق تھی اور قوم تیار ہو رہی تھی اپنے سالانہ بتوں کے تہوار کے لیے۔ تہوار کے دن ان کی قوم کے لوگ کھانا پکا کر ان بتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، پھر شہر کے باہر میدان میں جمع ہوتے، وہاں کھیلتے کودتے، ناچتے گاتے اور خوشیاں مناتے، شام کو گھروں کی طرف واپس آتے۔ صبح بتوں کے پاس جو کھانا رکھ گئے تھے اس کو اٹھاتے اور تبرک سمجھ کر کھا جاتے۔ اس دفعہ جب تہوار کا دن آیا تو سب تیار ہو گئے، پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار نہ ہوئے۔ وہ لوگ جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے اور ان بتوں نے اس کھانے کو چھوا تک نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا، یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ انہوں نے ایک ایک کر کے بتوں کو دیکھا،
और हर बुत से एक सवाल पूछा, कहो, क्या बोल सकते हो? क्या किसी को बचा सकते हो? क्या खुद को भी बचा सकते हो? मगर जवाब में सिर्फ पत्थरों की खामोशी थी। फिर उन्होंने एक कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से एक बड़े बुत को छोड़कर तमाम छोटे बुतों को तोड़ दिया। हर वार के साथ उनका दिल हल्का होता गया, जैसे वो तारीख की गर्द से तौहीद का चेहरा धो रहे हों। और आखिर में सिर्फ एक बुत छोड़ दिया। जब सारे बुत टूट गए तो एक सबसे बड़ा बुत बचा रह गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कुल्हाड़ी उसी बड़े बुत के गले में टांग दी और फिर बुत खाने से बाहर निकल गए। जब कौम त्योहार से लौटी और बुत खाना देखा, वो चौंक गए, हक्का बक्का रह गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, हमारे रबों को किसी ने तोड़ दिया, ये किसी ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। कभी किसी ने कहा, एक नौजवान है इब्राहीम, उसी को हमने हमारे बुतों की बुराई करते सुना है। बस फिर क्या था, भीड़ उबल पड़ी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया तो उन्होंने तस्लीम किया, मगर किस अंदाज में? कौम ने पूछा, ऐ इब्राहीम, क्या तुमने हमारे बुत तोड़े हैं? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये काम तो इस बड़े बुत का लगता है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूद से क्यों नहीं पूछ लेते कि उनके टुकड़े टुकड़े किसने किए हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर सब सोच में पड़ गए। फिर कहा, ऐ इब्राहीम, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि ये बोल नहीं सकते? इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो तुम अल्लाह को छोड़कर इनकी इबादत क्यों करते हो जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तुम्हें कुछ नफ़ा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते? ताज्जुब है तुम पर कि तुम अल्लाह को छोड़कर इन बुतों को पुकारते हो, तुम इनकी पूजा करते हो जिन्हें तुम खुद अपने हाथों से तराशते हो। क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी अकल नहीं है? ये जवाब सिर्फ तंज नहीं था, ये अक्ल का चाबुक था। कौम खामोश हो गई। उनके अंदर का सच एक पल के लिए कांप गया। उन्होंने आपस में कहा, वो सही कह रहा है, हम जानते हैं कि ये बुत बोलते नहीं। मगर फिर घमंड ने सच पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने हक की आवाज को दबा दिया। अब जब उनके पास कोई दलील नहीं बची तो उन्होंने जुल्म की तरफ रुख किया। फैसला किया गया, इसे आग में डालो और अपने रबों की मदद करो। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला कर लिया गया। इसके लिए उन्होंने एक बड़े से मैदान में कई दिनों तक खूब सारी लकड़ियां जमा की और फिर उसमें आग लगा दी। एक बहुत बड़ी आग तैयार की गई, इतनी बड़ी कि उसके पास जाकर किसी इंसान को उसमें फेंकना मुमकिन नहीं था। जब आग खूब भड़क उठी तो उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर मंजनीक के जरिए उस आग में डाल दिया। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ने आग से फरमाया, ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। लिहाजा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो ठंडी हो गई, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। आग हो या पानी, हवा हो या बादल, दुनिया की हर शय अल्लाह के हुक्म से ही चलती है। इसलिए जब आग को अल्लाह की तरफ से ठंडी होने का हुक्म हुआ तो वो ठंडी हो गई। आग ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को न जलाया, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी नहीं जले। लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलता हुआ देखने के लिए मैदान में खड़े थे, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े ही आराम से आग के बीच में बैठे हैं। लोग इस मोजज़े को देखकर हैरान थे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से बाहर निकले। कौम ये देखकर हक्का बक्का थी। उनका बुत परस्ती पर से एतमाद हिल गया और तौहीद की सदा दूर दूर तक फैल गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो आग अब बुझ चुकी थी, मगर असल आग अब नमरूद के दिल में भड़क चुकी थी, क्योंकि अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम हर गली, हर चौपाल,
हर जुबान पर था। लोग कहते और सवाल उठने लगे, क्या वाकई हमारे बुत झूठे हैं? कुछ तो चुपके से तौहीद की तरफ झुकने लगे। नमरूद, जो उस वक्त का ताकतवर और घमंडी बादशाह था, खुद को खुदा कहलवाता था, और अब उसे ये खबर मिली कि एक नौजवान उसकी खुदाई को खुली चुनौती दे रहा है। एक सुबह नमरूद के आलीशान महल में शाही दरबार सजाया गया। दीवारों पर सुनहरी नक्काशी, सिपाही कतारों में खड़े, दरबारियों के चेहरे पर घबराहट, और बीच में तख्त पर बैठा था नमरूद, खुद को रब समझने वाला एक इंसान। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया गया। नमरूद ने उनकी तरफ देखा, न कोई डर न झुकाव, बल्कि आंखों में जलता हुआ यकीन। नमरूद ने सवाल किया, बताओ तुम्हारा रब कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद मुस्कुराया। उसने 2 कैदी बुलाए, एक को रिहा कर दिया, दूसरे को कत्ल करने का हुक्म दिया। फिर घमंड से कहा, देखो मैं भी जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। मगर ये लॉजिक हक की रोशनी के सामने बस एक धुआं था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, और ऐसा जवाब जो नमरूद की अक्ल को तोड़ गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तू सच में खुदा है तो मेरा रब सूरज को मशरिक यानी ईस्ट से निकालता है, तू एक दिन उसे मगरिब यानी वेस्ट से निकाल कर दिखा। सन्नाटा छा गया। पूरा दरबार खामोश था। नमरूद के चेहरे से घमंड का रंग उतर गया, क्योंकि अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तो वो काफिर जो बहस कर रहा था गूंगा रह गया। प्यारे दोस्तों, ये 2 नजरियों की जंग थी। एक तरफ हक जो यकीन और लॉजिक पर खड़ा था, दूसरी तरफ बातिल जो घमंड और झूठ पर टिका था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक लॉजिक ने सदियों के तख्त हिला दिए। हिस्ट्री बताती है, नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मारने की बहुत कोशिशें की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। आखिर में अल्लाह ने एक नन्हे से मच्छर से उस नमरूद का काम तमाम किया। वही बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, उसकी मौत आई एक मामूली कीड़े के हाथों। इस वाक़े से हमें सीख मिलती है कि हक की ताकत बहस या तलवार से नहीं हारती। झूठ खुद बिखर जाता है। घमंड चाहे जितना बड़ा हो, अल्लाह की हिकमत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। एक सच्चा इंसान चाहे अकेला हो, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी झुका सकता है। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक को छोड़कर मुल्क शाम की तरफ चले गए। यहाँ पर उन्होंने अपने चाचा की बेटी हजरत सारा अलैहिस्सलाम से शादी की और यहीं रहने लगे। इस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सितारों को पूजते थे। ये लोग रात को इबादत करते थे, क्योंकि सितारे रात को ही दिखाई देते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ के लोगों को भी समझाया, ईमान की दावत दी और उनसे कहा कि तुम चांद, सितारे और सूरज की इबादत करते हो, लेकिन ये तो सब अल्लाह की मखलूक हैं और उसी ने इनको बनाया है। तुम उस अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते जो इन सब का मालिक है? लेकिन लोगों ने फिर भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात पर ध्यान नहीं दिया और कुफ्र ही करते रहे। कोई भी ईमान नहीं लाया। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर हिजरत करने का फैसला किया और मिस्र जा पहुँचे। मिस्र का बादशाह जो उस वक्त का फिरौन था, उसे खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बहुत खूबसूरत और जमील है। उस बादशाह ने अपने लोगों को भेजा कि उस औरत को मेरे पास ले आओ, और उस औरत के साथ जो आदमी है, अगर वो आदमी उसका शौहर है तो उसे कत्ल कर देना। उधर बादशाह ने अपने लोगों को भेजा, इधर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही भेज दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वो तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कह देना कि तुम मेरी बहन हो। फिर उन्होंने समझाया कि इस रूह ज़मीन पर
मेरे और तुम्हारे सिवा कोई ईमान वाला नहीं है, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। उस जालिम बादशाह ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुलवा लिया। जब उसने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के साथ बदसलूकी करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, इस बदबख्त से तू मेरी हिफाजत फरमा। अल्लाह ने दुआ कबूल की। उस दुआ की बरकत से उस बादशाह का हाथ जम गया। वो बुरी तरह चीखने लगा और उसके सारे मुलाजिम आ गए। ये देखकर हज़रत सारा अलैहिस्सलाम डर गए और सोचा कि अगर ये मर गया तो लोग ये सोचेंगे कि मैंने ही इसे कत्ल किया है। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा। इसके बाद उस बादशाह का हाथ ठीक हो गया, पर उसने फिर से वही हरकत की और फिर से उसका हाथ जम गया। ऐसा 3 बार हुआ और आखिरी बार उस बादशाह ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि अब की बार अगर तू मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। वो समझ गया कि ये औरत कोई मामूली औरत नहीं है। उसने अपने नौकरों से डांट कर कहा कि ये तुम किसको लेकर आए हो, ये कोई मामूली औरत नहीं है। फिर हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और वो ठीक हो गया। इसके बाद उस बादशाह ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त के साथ रिहा कर दिया और उनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को उनके साथ कर दिया। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम जब वापस आईं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, बल्कि हम यहाँ से वापस जाएंगे। फिर वो लोग वापस फ़िलिस्तीन चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल की हो गई, पर उनकी कोई औलाद न थी। तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा, मैं बांझ हूँ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद की तमन्ना है, तो क्यों न मैं हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करा दूँ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद की दुआ कबूल की और बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से नवाजा। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का रवाना हो जाओ। प्यारे दोस्तों, उस वक्त मक्का एक बिल्कुल बंजर जगह थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को लेकर मक्का की उस सरजमीन पर पहुँचे जो बिल्कुल बियाबान थी। फिर हुक्म हुआ कि अब इन्हें यहाँ छोड़कर आप यहाँ से वापस चले जाएं। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर जाने लगे तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को बहुत हैरानी हुई और वो अपने शौहर से पूछने लगी, ऐ इब्राहीम, हमें कहाँ छोड़े जा रहे हो? यहाँ ना पानी है, ना खुराक, ना कोई इंसान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया और चलते रहे। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम भी उनके पीछे पीछे चलती रहीं और सवाल करती रहीं कि हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? ये तो बिल्कुल बेआबाद बियाबान जगह है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या आपको अल्लाह ने ऐसा करने का हुक्म दिया है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। तब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम मुतमईन हो गईं और बोलीं, अगर ये बात है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो कोई बात नहीं, अल्लाह हमें बिल्कुल ज़ाया नहीं होने देगा। और वो तन्हा उस छोटे से बच्चे के साथ उस बियाबान जगह में अल्लाह के भरोसे रहने लगी। तो दोस्तों, ये था वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। उम्मीद है ये वाक़या ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वाक़या पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत का सफ़र को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।